प्रभु यीशु मसीह के नाम पे आप सब लोगों का आप सब लोगों को रविवार की सलाम. It's wonderful to be with you all this wonderful day to share the word of God and celebrate Lord's Day with you all. I want to praise God for Dauntless Pulpit Ministry and what they are doing to bring the quality word of God to your doorstep. We praise God for them and all their team. आज की सुबह के लिए प्रभु का धन्यवाद हो कि हम फिर से एक बार प्रभु के वचनों में से मनन और अध्ययन करने के लिए इकट्ठा होने पाए हैं. विशेष करके परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहते हैं डॉन्टलेस पुलपिट के इस माध्यम के लिए जो चुनिंदा परमेश्वर के वचनों को हमारे मध्य में ला पाते हैं. प्रभु की स्तुति करते हैं फिर से एक बार कि हम एकत्र होने पाए. We want to begin with reading a scripture portion from John chapter 11 verses 25 and 26. Let me read it in English and then brother can read it in Hindi for us. Jesus said to her, I am the resurrection and the life. Whoever believes in me, though he die, yet shall he live. And everyone who lives and believes in me shall never die. Do you believe this? और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय और 25 और 26 पद इस प्रकार से है. यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ. जो कोई मुझ पर विश्वास करता है यदि वह मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक न मरेगा. क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? And let's pray. Father, we want to thank you for your living word that continues to shape, mold, inform the people of God. As we dedicate our time to listen from you, we pray that you would open our hearts to your word. And apart from gaining the knowledge, Lord, we also would grow in obedience to your word. May your word and the hope that it brings help us to live a better, a wonderful, hopeful lives during this crisis time. We depend on you and your spirit for the deliverance of the word. We ask that you would take control of us and preach to us whatever is needed for us. In Christ's most precious name we pray. Amen. I want to share a story from the early church, and the story is about a pandemic that happened during the early church. So the pandemics are not new to our generation, but if we go back to history, we learn that pandemics are part of history and they are springing once in a while in every generation. और आज की शुरुआत में एक महामारी की कहानी से करना चाहता हूं जो पुरातन काल में गढ़ी है. तो दुनिया के लिए महामारी नई नहीं है. पीढ़ी दर पीढ़ी हर एक बार कहीं ना कहीं से महामारियां आती ही रही. So during the early church time, from between 2nd and 3rd century, they had a couple of plagues that have devastated their society. But the way Christians responded, in spite of the fact that they were minority, is very special. और दूसरे और तीसरी सदी के अंदर जो शुरुआत की जो कलीसिया थी, उस समय जिस प्रकार की महामारियां और जिस प्रकार की बीमारियां आया करती थी, जिस प्रकार की मरकियां फैला करती थी, और किस तरह से मसीही लोग उसका प्रतिसाद देते थे, किस तरह से वो इस पूरी परिस्थिति के साथ अपना बर्ताव करते थे, वो सीखने लायक बात. There was a plague, and during that plague, most of the wealthy people, the priests, and also the rulers flew away from the society to protect themselves, and they went to safe places. और उस समय जो महामारी आई थी दूसरी और तीसरी सदी के बीच में, तो उस समय में जितने भी सक्षम लोग थे, जो लोग भाग पाते थे, मतलब कि जैसे कि राजा लोग, अमीर लोग, उसके साथ साथ याजक वर्ग जो मंदिर में सेवा करता था, वो सब जितना हो सके उतना दूर भाग गए थे उस पूरे असरग्रस्त परिस्थिति में से. But the Christians who were in similar situation, even though they were able to flee away from the society, but they chose to live a life of suffering along with other people. परंतु जो मसीही लोग थे जिनके पास शायद भागने का विकल्प भी था,
फिर भी उन्होंने निर्णय लिया कि वो रुकेंगे और जो जरूरतमंद है, जो अलग अलग परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, उनकी वे मदद करेंगे। They have suffered themselves, but they continue to help those who are in greater need, and some of them in the process have also lost their lives. और मसीही लोग खुद भी इस दुख सहन में से गुजर रहे थे, मरकी में से गुजर रहे थे, परंतु फिर भी उन्होंने निर्णय लिया कि जो लोग और मदद की जरूरत है, जिनको जो लोग जरूरतमंद है, उनको वो मदद करेंगे। और इस पूरी प्रक्रिया में काफी सारे मसीही लोग मारे भी गए। That made a great impact on the society around to see Christians as special people and a people with different perspective on suffering, pain, and death. और इसकी वजह से आजू बाजू के समाजों में मसीही लोग प्रचलित हो गए और उनका जो अलग पूरा दृष्टिकोण था दुख सहन मरण के लिए और इन मुश्किल परिस्थितियों के लिए, इन लोगों के मन में एक नई आशा को लाया कि मसीही लोग के पास एक अलग आशा है। So the church historians say that church actually grew in number during such pandemics. और इतिहासकार ऐसे कहते हैं कि ऐसे मुश्किल परिस्थिति में कलीसिया दरअसल बढ़ी, उस कलीसिया में हमने बढ़ोतरी देखी। So there are three things that we can learn from the early church. The first thing is Christians saw the sufferings with a better hope because of the gospel. सबसे पहली बात, तीन चीजें हम इस पूरे परिस्थिति से सीख सकते हैं। उसमें से पहली कि मसीही लोगों के पास एक बेहतर आशा थी इस दुख भरे समय के लिए भी। When everybody else was terrified and running for their lives, the Christians felt they had answer to the problem, and rather than fleeing away from the problem, they felt that God wants them to stay in the problem. जब मुश्किल समय आया, मसीह लोग के पास भागने का विकल्प भी था, तब उन्होंने ये निर्णय लिया कि वे रुकेंगे और वो मदद करेंगे, कि परमेश्वर वैसा चाहता है। उनके पास एक अलग दृष्टिकोण था, एक अलग आशा थी। And the second thing that we learned from them is they believed in the hope of resurrection, that is, a life after death, and that was alien to anybody else during that generation. और दूसरी बात जो हमें सीखने को मिलती है वो ये है कि उनके पास एक पुनरुत्थान की आशा थी, जो जीवन के मरण के बाद भी जीवन है। और ये जो विचार था वो पूरी दुनिया के लिए एकदम नया था, जो मसीही लोगों के पास था। And then thirdly, that situation was ideal for them to actually spread the love of God to the whole world. और तीसरी बात यह कि ये परिस्थिति बहुत ही अच्छी और बहुत ही योग्य थी, जिस समय में वो परमेश्वर का जो प्रेम है वो पूरी दुनिया के साथ बांट सके। So as we go through this pandemic season right now with a lot of questions even in our hearts, we should remember one thing, that the world is in chaos and they are asking more questions, and they want to hear from anybody who can offer hope to them. और इस समय में हम जब जी रहे हैं, जब महामारी पूरे विश्व में फैली हुई है, जब हमें ये समझने की जरूरत है कि अलग अलग लोगों के पास अनेक प्रश्न हैं, वे आशा को ढूंढ रहे हैं, अंधियारे में वे पड़े हुए हैं, और वो लोग ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं जिनके पास उनको एक नया दृष्टिकोण, एक नई आशा और उनके प्रश्नों के जवाब या फिर उत्तर या फिर हल मिल पाए। And definitely the questions that people are asking today are not easy questions. They are tough questions, bigger questions, and no human being can answer such questions. और जो प्रश्न वो पूछ रहे, कोई साधारण प्रश्न नहीं पूछ रहे, वो बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही बड़े हैं, और मानव तौर पे, मानवीय होकर हम इन प्रश्नों का उत्तर खुद से नहीं दे सकते। The suffering of people, the presence of the evil in this world, and death are not the questions that any human being can easily answer. और प्रश्न जैसे कि मानव क्यों दुख सहन करता है, या फिर मृत्यु की बात हो, या फिर दुनिया में दुष्टता क्यों है, ऐसे कोई भी प्रश्नों का उत्तर हम मानव होकर नहीं दे सकते। Only God can give such solutions to such great problems. केवल और केवल परमेश्वर ही इतने बड़ी बड़ी परेशानियों का, समस्याओं का हल या फिर उत्तर दे सकते हैं। So today we will look at the theme named as only God has a solution for God-sized problems. तो आज हम जिस अध्याय पे मनन करने वाले हैं उसका शीर्षक इस प्रकार से है कि परमेश्वर जितनी बड़ी समस्याओं का हल केवल परमेश्वर दे सकते हैं। And we want to look at John chapter 11 and learn some wonderful principles that have carried
the early church during the pandemics, and they have enough great truths in it to carry us forward in our generation too. और इसलिए हम आज यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 11वें अध्याय में से मनन और अध्ययन करना चाहते हैं, जिस अध्याय ने पुरातन काल की शुरुआत की कलीसिया को मदद की कि वे महामारी में से बाहर निकलकर एक नई आशा में जीने पाए, और आज के समय के लिए हमारे लिए भी ये अध्याय उसी आशा को देता है कि हम किस प्रकार इस महामारी से उभर कर बाहर निकलकर हम एक विजयवंत कलीसिया बनने पाए। John chapter 11 discusses about the seventh sign that Jesus performed in the Gospel of John. यूहन्ना रचित सुसमाचार 11वें अध्याय के अंदर यीशु मसीह का 7वां चिन्ह लिखा गया है, जो यीशु मसीह ने चिन्ह रूपी से अपने लोगों के सामने किया था। It follows 6 other signs that Jesus performed in this gospel. और इस 7वें चिन्ह से पहले 6 और चिन्ह इस पूरे सुसमाचार में इसके आगे लिखे गए जो यीशु मसीह ने किए थे। And the Spirit of God has placed this 7th sign in this strategic position to show the greatness of our Lord Jesus Christ and his power over death. और फिर ये जो 7वां चिन्ह जो बहुत ही रचनात्मक रीति से 11वें अध्याय में लिखा गया है, वो परमेश्वर का मृत्यु के ऊपर का जो सामर्थ्य है, जो उनकी शक्ति है, उसको दर्शाते हुए हमारे सामने यहाँ पर रखा गया है। Other 6 signs speak about Jesus' authority over creation, over demons, over sicknesses, and over people. But this particular sign answers the greatest problem the humanity has, that is the problem of death. और आगे के जो चिन्ह है वो अलग अलग बातों के ऊपर यीशु मसीह का विजय दिखाते हैं, जैसे कि शैतानों के ऊपर, दुष्ट आत्माओं के ऊपर, बीमारियों के ऊपर, नेचर मतलब कि संस्कृति के ऊपर, उसके साथ साथ प्रकृति के ऊपर परमेश्वर का विजय दिखाते हैं। परंतु ये जो खास चिन्ह है 11वें अध्याय के अंदर, वो मानवीय सबसे बड़ी समस्या जो है मृत्यु की, उसके ऊपर परमेश्वर का विजय दर्शाता है। If there is God in this world or any other religion in this world, then they have to give a coherent, better answer to this problem of death and suffering in this world. यदि इस दुनिया में कोई परमेश्वर है, यदि कोई धर्म है, तो हर एक परमेश्वर या फिर धर्म जो भी है, उनको मृत्यु के बारे में जो मानव की सबसे बड़ी समस्या है, उसके लिए एक योग्य उत्तर देना होता है। And I believe the scriptures provide that for us, especially from chapter 11. और मैं मानता हूं कि परमेश्वर का पवित्र शास्त्र जो है हमें ये उत्तर देता है, और खास करके यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय। We'll be learning 4 things from this chapter today. इस पूरे अध्याय में से हम आज 4 बातों को सीखने वाले हैं। The first thing is the greatest need that human beings have. सबसे पहली बात कि सबसे बड़ी जरूरत जो मानव जात को है। And the second thing is the greatest truth the scripture proclaim. और दूसरी बात है कि जो सबसे बड़ा सत्य जो पवित्र शास्त्र में हमें बताया गया है। And the third thing is God is not distant from our problems, but is very present, very much present, imminent in our situation. और तीसरी बात यह है कि परमेश्वर हमारी समस्याओं से दूर नहीं है, परंतु हमारे साथ निकटतम संबंध रखकर परमेश्वर हमारी समाज हर एक परिस्थिति में वो सहभागी बनता है। And fourth thing is God has power over death, and he wants us to look at his power and believe in him. और चौथी बात यह है कि परमेश्वर का मृत्यु के ऊपर सामर्थ्य है, परमेश्वर मृत्यु के ऊपर विजयवंत है, और परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसको देखें और उस पर विश्वास करें। So let's look at the first point, that human beings have a greater need, and we look at that from verses 14 and 15. और सबसे पहले हम 14वें अध्याय 15वें अध्याय में से जो सबसे पहला मुद्दा है कि मानवीय सबसे बड़ी जरूरत, उस पर हम वर्णन करने वाले हैं अभी। In interest of time, I will let Joel read verse 14 and 15 for us. तब यीशु ने उनसे साफ-साफ कर दिया, लाजर मर गया है, और मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूं कि मैं वहां न था, जिससे तुम विश्वास करो, परंतु अब आओ हम उसके पास चले। So while Jesus was away from this Bethany, which was closer to Jerusalem, और जब यहाँ पर यीशु मसीह जो बेथनी था, उससे थोड़े ही नजदीक थे अभी, and Jesus was a good friend of this family, और यीशु मसीह तो इस परिवार के बहुत ही अच्छे मित्र भी थे, and this family consisted of 2 sisters and a brother. और इस परिवार के अंदर 2 बहनें और एक भाई था।
And we read from the scriptures that they three of them have believed in Christ, and they have been hearing from Christ, and probably they became very good friends with Christ, and Christ also loved them. और इस शास्त्र पाठ में से और वचनों में से हम सीख पाते हैं कि वे मसीह के अनुयायी थे, मसीह के मित्र थे। उसके साथ साथ वे वचनों में से सीखते थे, उस पर मनन करते थे, और उसके साथ साथ यीशु मसीह पर वे प्रेम करते थे और यीशु मसीह पर भी उन पर प्रेम करते थे। And we think we read that passage, and then we'll be surprised to learn that those who are known by Christ, those who are loved by Christ, those who are friends with Christ, but still they had a problem in their home. और यहाँ पर हम जब शास्त्र पाठ को पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा जो यीशु मसीह के मित्र थे, जो अरस परस एक दूसरे से प्रेम करते थे यीशु मसीह से, और उसके साथ साथ जो लोग यीशु मसीह के से निकट थे, बहुत ही नजदीक थे, वो लोग भी अपने जीवन के अंदर उनको सहन करना पड़ा। We are told that Lazarus was sick and he actually died. हमें एक लिखा गया है कि वहां पर लिखा है कि लाजरस जो था वो बीमार था और वो दरअसल में मर गया। As we are undergoing this pandemic in our own lifetimes, please don't think that Christians will not have any trouble in this world. और हम जब इस महामारी वाली विश्व से गुजर रहे हैं तब याद रखिए, ऐसा कभी मत सोचना कि मसीही लोगों को कभी कोई दुख सहन नहीं करना पड़ेगा। We have to go through these difficult times, but not without hope. हमें तो इन मुश्किल परिस्थितियों से गुजरना पड़ेगा, परंतु आशाहीन होकर नहीं। So we will look at Martha, Mary as an example of how to depend on Christ even during a crisis. और हम मार्था, मरियम और लाजरस के जो प्रत्युत्तर है, प्रतिसाद है, उसमें से हम सीखेंगे कि हम किस प्रकार हमें हमारे मुसीबतों में से या फिर इस महामारी के परिस्थिति में से गुजरना चाहिए और अपना प्रतिसाद देना चाहिए। The biggest problem that human beings can encounter is death. सबसे बड़ा जो समस्या कोई भी मानव जात में मानव सामना कर सकता है वो है मृत्यु। And here you see a person named Lazarus, which means helped by God, actually has lost his life due to some illness. और यहाँ पर हम देखते हैं लाजरस, जिसका मतलब होता है कि परमेश्वर के द्वारा मदद पाया हुआ, उसने अपने जीवन को गुमा दिया है, वो मर गया। And Jesus was brought the news, like some servants have brought that news to Jesus Christ that Lazarus was ill and probably was dying. और फिर उसके बाद कुछ चाकरों के द्वारा या फिर कुछ गुलामों के द्वारा यीशु मसीह तक ये खबर पहुंची कि लाजरस जो था वो बहुत बीमार था और वो मर चुका है। But the text says Jesus didn't go to Lazarus immediately, but he waited at the place where he is for 2 more days. परंतु प्रभु का वचन कहता है कि वो यीशु मसीह तुरंत ही उठकर लाजरस के पास नहीं गए, परंतु जहां थे वहां जानबूझकर और 2 दिन वे थे। By the time Jesus thought and he wanted to go to Lazarus, it was 4 days that Lazarus had already died. और जब यीशु मसीह ने निर्णय लिया कि वो लाजरस के पास जाएंगे, तब वो तो चौथा दिन हो चुका था लाजरस को मरे। And I think Lord wants to make a statement and wanted to learn or teach a lesson to the disciples and those who believe in him, that even though death is more painful and death is the enemy of human beings, but still in Jesus we have hope and an answer to the problem of death. और भले ही हम अलग-अलग परिस्थितियों में से गुजरे, हम परमेश्वर के साथ हम हो, परंतु फिर भी परमेश्वर हमें जो सिखाना चाहता है वो ये है कि मरण भले भी, मृत्यु भले कितना भी बड़ा शत्रु मनुष्य का क्यों ना हो, परंतु यीशु मसीह में हमें ये आशा मिलती है कि हम उससे परे हो सके, उस पर हम विजय पा सके। So the Bible says in Romans 6:23, death is the consequence of the sin in this world. बाइबल के अंदर रोमी 6वां अध्याय 23वें पद में इस प्रकार लिखा हुआ है कि पाप है, उसका जो वेतन है वो मृत्यु है। And for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Jesus Christ our Lord. So death is not present in this world just like that, but it is the consequence of sin that came through Adam. और ये जो आयत है ये हमें सिखाती है कि मृत्यु ऐसे ही इस दुनिया में नहीं है, परंतु आदम ने जो पाप किया उस पाप की वजह से मृत्यु है। And we learn another important thing about the death. Death is painful and is the last enemy of humanity according to the word of God in 1 Corinthians chapter 15:26. और दूसरी बात जो हम मृत्यु के बारे में सीखते हैं वो ये है कि मृत्यु दर्दनाक तो है ही,
परंतु मानव जात में जिसमें विश्वासियों का भी शामिल होता है, उन लोगों के लिए भी मृत्यु जो है वो आखिरी शत्रु है। इस प्रकार हम पहला कोरिन्थियों 15 और 26 में पाते हैं। And that is only just a transition for a believer, but it is never the end of life for a believer. और कोई भी विश्वासी व्यक्ति के लिए ये जो मृत्यु है ये केवल एक बदलाव है, वो अंत नहीं है। So these are the important truths that we learn from the scripture, but Jesus wants to make sure that people would understand death is not the end of life in this world. और प्रभु के वचनों में से हम इन बहुत ही महत्वपूर्ण सत्यों को सीखते हैं, और उसके साथ साथ यीशु मसीह चाहते हैं कि हम समझे कि मृत्यु जीवन का अंत नहीं है। And that's the reason why Jesus delayed a couple more days and made sure that Lazarus was dead, and everybody knew that Lazarus was dead and buried for 4 days. और इसीलिए शायद यीशु मसीह ने जानबूझकर वे 4 दिन बहुत ही देरी से आए, ताकि लोग जाने कि 4 दिन से लाजरस मर चुका है। So many people during this time ask God, I have believed in Christ and I have come to know Christ. I pray, but still I am struggling with these issues, and especially with COVID. Probably some of our friends have been infected with COVID or loss of a job or things like that. And we begin to ask, Lord, we have loved you, but why do we get through these difficult times? और हम में से कई विश्वासी लोग भी ऐसा कहेंगे कि मैंने तो यीशु मसीह पर विश्वास किया, उस पर मैंने अपना पूरा भरोसा रखा, अपना पूरा आधार रखा, परंतु फिर भी मेरे जीवनों के अंदर बहुत सी मुश्किल आई, आंधियां आई। कोविड से शायद कोई ना कोई परेशान हुए रहेंगे, फिर उसके साथ साथ या फिर लोगों की नौकरी गई रहेंगे, वे बेरोजगार हो गए होंगे, शायद घर में अलग अलग प्रकार की तंगियां भी पड़ी होगी। फिर वो पूछते हैं कि परमेश्वर, मैंने आपसे प्रेम किया, फिर भी मेरे जीवन में ऐसा क्यों आया? I think that's the question that Jesus is addressing in this passage. मैं ये मानता हूं कि ये प्रश्न का उत्तर परमेश्वर यीशु मसीह इस पूरे शास्त्र भाग में देना चाहते हैं। And he wants to answer the question in the next portion of the scripture from verses 17 through 27. Jesus proclaims the greatest truth that humanity should hear in the light of the greatest problem. और मानव जात को जिस उत्तर को सुनने की जरूरत है, जिस प्रकार की सबसे मुश्किल परिस्थितियों में से वो गुजर रहे हैं, उस उत्तर को, उस आशा को 17 से 27 पद के अंदर यीशु मसीह हमें सिखाते हैं। Let's read that passage, and it says, chapter 11, I think we already read, but I think it is worth repeating. In chapter 11, verse 25 and 26, it goes like this. Jesus said to her, I am the resurrection and the life. Whoever believes in me, though he die, yet he lives. And everyone who lives and believes in me shall never die. Do you believe this? और जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, ये योग्य होगा, उचित होगा यदि हम फिर से भी पढ़े। यूहन्ना 11, 25 और 26, यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक न मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? Death is a reality that the Bible doesn't deny. मृत्यु एक सत्यता है जिसको बाइबल कभी नकारती नहीं है। But it says that death is not the end of this life, but God has planned for a beautiful eternal life after death. और हमें ये भी सिखाता है वचन कि मृत्यु जो है वो अंत नहीं है, परंतु वो तो केवल एक विराम है, जिसके बाद परमेश्वर ने हमारे लिए एक बहुत ही सुंदर अनंतकालिक जीवन आगे रखा हुआ है। And resurrection is not just an event or a concept in Christianity, but resurrection is Christ himself. The scripture says, I am the resurrection. और फिर उसके बाद जो पुनरुत्थान है, ये कोई घटना या फिर कोई सिद्धांत केवल मात्र नहीं है, परंतु प्रभु का वचन हमें कहता है कि यीशु मसीह पुनरुत्थान है, क्योंकि यीशु मसीह ने खुद कहा कि पुनरुत्थान में हूं। He is the resurrection and he is the life. पुनरुत्थान और जीवन यीशु मसीह। And he wants us to believe in him, that even though we die, we shall live with him. और वो चाहते हैं कि हम ये विश्वास करें कि भले ही हम मर भी क्यों ना जाए, परंतु हम जिएंगे। And by seeing this sign, seventh sign, Jesus wanted his friends, beloved, and also his disciples to see that Christ has power over death. Whatever Christ is proclaiming is possible, and he wants to show that through this sign.
और ये 7वें चिन्ह को जो 11वें अध्याय में लिखा गया है, उसके द्वारा यीशु मसीह लोगों को, चेलों को, उनके प्यारे मित्रों को, सबको ये सिखाना चाहते हैं कि यीशु मसीह मृत्यु के ऊपर भी विजयी है। जो वो बात कहते हैं वो करते भी हैं। Death is not a full stop for Christians and even for others, the whole world, but death is just a transition from this life to another. मृत्यु जो है वो किसी भी व्यक्ति के लिए, विश्वासियों के लिए भी कोई पूर्ण विराम नहीं है, परंतु मृत्यु तो केवल एक बदलाव है जिसमें से हम अनंत काल में प्रवेश करते हैं। And a resurrection is not only for believers, but everybody actually comes to life, or everybody comes back to life, but some to eternal life and some to eternal judgment. और उसके बाद जो अनंत काल है या फिर जो पुनरुत्थान है, वो पुनरुत्थान भी हर एक व्यक्ति के लिए है, परंतु फर्क केवल इतना है, कोई लोग अनंतकालिक जीवन में प्रवेश करते हैं और कोई लोग अनंतकालिक न्याय में प्रवेश करते हैं। So this is the greatest truth that Christians have, and they have to reflect during such difficult times. और ये सबसे बड़ा सत्य है जो मसीही लोगों के पास है, और ऐसे मुश्किल समयों के अंदर उनको इन पर प्रकाश डालने की जरूरत है। When the whole world is fearing about death and they are afraid of death, and Bible says you don't have to be afraid because this is not the end of the world. और जब पूरा विश्व जो है वो मृत्यु से डर रहा है, इस बीमारी से डर रहा है, परंतु प्रभु का वचन कहता है हमें कि हमें भय मानने की जरूरत नहीं है। What this does to believers is they in the light of the death and in the light of difficult situations in this world, they can live a hopeful and a joyful life even during the pandemic. और इसके द्वारा जो होगा वो ये होगा कि इस मुश्किल और भयजनक परिस्थिति के अंदर, खतरनाक परिस्थिति के अंदर भी हम एक आशा के साथ अपने जीवन को जी पाएंगे। Believers know that our life is in the hands of God. विश्वासी जानते हैं कि हमारा जीवन परमेश्वर के हाथ में है। And believers also know that even if Lord wants to take our life, it is taken only during the appointed time, and we will not go to heaven before or after the time that God has appointed for us. और दूसरी बात यह है कि विश्वासी लोग ये भी जानते हैं, यदि परमेश्वर हमारी जान को लेना चाहते हैं, परमेश्वर चाहते हैं कि हमारा मृत्यु हो, तो वो एक नियुक्त समय में ही होगा। उस नियुक्त समय के आगे या फिर नियुक्त समय के पीछे वो कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर ने एक नियुक्त समय रखा है जब हमारा प्राण ले लिया जाएगा। So we don't fear death today. इसलिए आज हम मृत्यु से भय नहीं मानते। So we just commit ourselves to Lord and say, Lord, whatever plan you have for me and my life, let it be done in my life. इसलिए हम परमेश्वर को अपने जीवन को समर्पित करते हुए कहते हैं कि परमेश्वर तेरी जो भी योजना है मेरे जीवन के लिए वो होने दे मेरे जीवन में। Whether it is life in this world or living with you in eternity. भले इस पृथ्वी पर का जीवन हो या फिर अनंत काल में आपके साथ जीने की बात हो। That's what Apostle Paul clearly understood, and he proclaimed whether to live on earth and helping the people around, or to live with Christ, any of the two facts is fine for me. इसीलिए इस प्रकार से पौलुस प्रेरित भी कहता है कि चाहे पृथ्वी पर रह के विश्वासियों के साथ, जरूरतमंदों के साथ रहने का और उनको मदद करने की बात हो, या फिर स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा के साथ परमेश्वर में रहने की बात हो, वो दोनों भी ठीक है। So those thoughts are in Philippians 1. और ये फिलिपी 1 में हम इन विचारों को पाते हैं। So we have seen that greatest need that humanity has is the problem of death. हमने देखा सबसे पहले कि सबसे बड़ी जरूरत जो मानवीय को है वो है मृत्यु। And the greatest solution for that problem is in Christ and through resurrection. सबसे बड़ी समस्या जो हमने जीवन की देखी मानव की वो है मृत्यु, और उसका जो उपाय है वो यीशु मसीह में हमें मिलता है। And we can see how this great truth actually drives people towards hope. और हम ये देखते हैं कि ये जो बड़ा सत्य है वो किस प्रकार से लोगों को एक आशा में लेके जाता है। We hear of Martin Luther, the reformer, that he has lost his young daughter, to some illness at her very young age. और हम मार्टिन लूथर के बारे में जानते हैं कि उन्होंने अपनी बेटी को एक बहुत ही कम उम्र में गुमा दिया था कोई बीमारी की वजह से। And he was looking at the daughter who died, and he says this wonderful statement. और वो जो लड़की थी, उनकी जो बेटी थी, जब वो बीमारी के बिस्तर पे थी, तब उसको देखकर मार्टिन लूथर ने एक बहुत ही सुंदर व्याख्यान कहा।
I love her very much, but if it is thy will to take her, dear God, I shall be glad to know that she is with thee. मार्टिन लूथर ने इस प्रकार कहा कि मैं मेरी बेटी से बहुत ही प्रेम करता हूं, परंतु यदि ये आपकी इच्छा है परमेश्वर, तो मैं बहुत ही खुश होगा कि वो आपके साथ रहे. And you can see that Luther was gripped by this truth that his daughter momentarily or is just in transition from life in this world to the life in eternity. So he was able to say, she is not there with me. I love her to be with me, but even though she is not with me, she is in eternity and she is alive with thee. So I'm happy about it. और मार्टिन लूथर इस सत्य को जानता था कि मृत्यु जो है वो पूर्ण विराम नहीं है, ये तो केवल एक बदलाव की बात है. इसलिए जब मार्टिन लूथर की बेटी वहां पर मरण बिस्तर पर थी, मृत्यु बिस्तर पर थी, तब वो ये बहुत ही विश्वास के साथ कह पाए कि मैं इसे प्रेम तो करता हूं परमेश्वर, परंतु मैं जानता हूं कि वो मृत्यु के बाद आपके साथ अनंत काल में भागीदारी है, इसलिए मैं खुश हूं. Yeah, so only believers can say that. Nobody else has that great hope in this world. और केवल विश्वासी लोग ये कह सकते हैं, किसी और व्यक्ति के पास इस प्रकार की जीवंत आशा नहीं होगी. The Bible says in 1 Corinthians chapter 15 verse 55 and 57, where, O death, is your victory? Where, O death, is your sting? और पहला कोरिन्थियों के अंदर लिखा है कि हे मरण तेरा डंक कहा, हे मरण तेरा विजय कहा. The sting of the death is sin, and the power of sin is law. But thanks be to God, He gives us the victory through Lord Jesus Christ. और ये जो पूरा जो डंक है, ये मृत्यु से, ये जो मृत्यु का जो डंक है वो पाप से है, और उस पाप का जो सामर्थ्य है वो नियम से है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो हमें परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा हमें इसमें विजयवंत करता है. And this is amazing. So those ever we all go through the problems, but if you remember the truth proclaimed by the scriptures, I think we also will have a certainty about our future life, and we will also be able to speak like Martin Luther. और हम में से प्रत्येक लोग मुश्किल समयों में से गुजरते ही हैं, परंतु इसके द्वारा हम ये सीख पाएंगे कि हमारे जीवन में भी आगे निश्चितताएं हैं और परमेश्वर ने नियुक्त की हुई है चीज है, और इसी प्रकार हम मार्टिन लूथर के समान कह पाएंगे विश्वास के साथ. People around us do not have such hope. हमारे इर्द गिर्द आसपास के लोग के पास शायद इस प्रकार की आशा ना हो. So do you know Christ has sovereignty over death and he can save your life? क्या आप ये जानते हैं कि यीशु मसीह मृत्यु के ऊपर भी सर्वोपरि है, सत्ताधारी है, और वो आपको जीवन दे सकता है? If you believe in the truth and that truth is in your heart sealed, then you won't be afraid of any situation that comes across your life. यदि ये सत्य को आप जानते हैं और यदि ये सत्य को आपने अपने हृदय में छिपाए रखा है, तो आप अपने जीवन की कोई भी परिस्थिति के अंदर कभी आप भयावह नहीं होंगे. The word that we are listening today is not about death, but even if there is death in front of us, but still we can live a life of certainty. We can live a life of joy, even in the midst of death and suffering around the world. भले ही मृत्यु हमारे सामने क्यों ना हो, परंतु उस मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में भी हम एक आशामय जीवन जी सकते हैं कि मृत्यु कोई अंत नहीं है, परंतु मृत्यु केवल एक बदलाव है और मृत्यु केवल एक खत्म होने वाली बात है. The word says truth will set people free. प्रभु का वचन कहता है सत्य लोगों को छुटकारा देगा. And the truth about death, that we have resurrection after life, will enable us to go strong in this life. और ये जो सत्य है कि मृत्यु के बाद हमें हमारे लिए पुनरुत्थान रखा गया है, वो हमें इस जीवन में हर एक परिस्थितियों में से आगे बढ़ने के लिए एक आशा देगा. We will look at the third truth from this passage. After the problem, we saw that Bible proclaims a great truth, and we see not only a great truth, but we have a great Savior who actually empathizes with us in our problems. और सबसे पहले हमने देखा कि एक महान आशा है हमारे पास, और एक महान आशा, एक महान जरूरत है. उसके बाद हमने देखा एक महान आशा है हमारे पास. उसके बाद हम अभी देखने वाले हैं कि हमारे एक बहुत ही सहानुभूति रखने वाला हमारा परमेश्वर है, जो हमारे हर एक दुखों में वो सहभागी बनता है. Verses 28 through 37, the scripture portion speaks about how Christ has identified with the pain that people are going through. He speaks to Martha, he speaks to Maria,
or Mary, and he speaks to people around and he comforts them. He not only just speaks about the truth, but he also emphatically, with empathy, he cries with them in their problem. और हम यहाँ पे हम देखते हैं 28 से 37 पद के अंदर कि लोग प्रभु यीशु मसीह केवल उनको सत्य सिखा नहीं करते या फिर केवल बातें नहीं करते, परंतु परमेश्वर के दुखों में वो परमेश्वर लोगों के दुखों में वो सहभागी बनते हैं। उसके साथ साथ हम देखते हैं केवल शब्द से नहीं, परंतु वो खुद उन लोगों के साथ रोते भी है। Scripture and the Christianity is not only about proclaiming the truths, but the truth is put in the form of person, and we actually embody the truth in the society. और वचन या फिर प्रभु की जो सीख है वो केवल सत्यों को बताने के बारे में नहीं, परंतु ये सत्यों को एक देह के रूप में हमारे लिए दिया गया है, और वो देह हम हैं जो इस समाज में रखे गए हैं ताकि हम हमारे जीवनों के द्वारा इन सत्यों को प्रकट कर सकें। We want to read chapter 11 verse 33. और 11वें अध्याय का 33वां पद हम पढ़ना चाहेंगे। When Jesus saw her weeping and the Jews who had come with her also weeping, he was deeply moved in his spirit and greatly troubled. और यहाँ पर इस प्रकार लिखा है कि जब यीशु ने और उन यहूदियों ने जो उसके साथ थे रोते हुए देखा, तो आत्मा में वो बहुत ही उदास और व्याकुल हुआ। So there are two things that help us to understand here. The word embryomai is the Greek word used, which says Jesus was sad and also angry with the situation. और यहाँ पर ये जो यूनानी शब्द लिखा है एम्ब्रियोमाई, ये इस प्रकार की भावना को दर्शाता है जिसके अंदर यीशु मसीह एक तरफ दुखी तो थे, परंतु यीशु मसीह उसके साथ साथ गुस्सा भी थे। He was very sad that a beloved brother Lazarus was dead. वो बहुत ही दुखी थे कि उनका जो प्रिय भाई लाजरस था वो मर गया था। But he was also angry at the death, the consequence of sin, and how it is causing people to suffer. और वो गुस्सा इस बात से थे कि जो मरण था, जो पाप की वजह से हुआ, वो किस प्रकार लोगों को मार रहा था और मृत्यु के घाट उतार रहा था। Even though Jesus had ability to bring people out of death, but still he could see how death is devastating humanity. और भले ही यीशु मसीह के पास सामर्थ्य था कि वो मृत्यु में से भी लोगों को जीवन दे सके, परंतु वो इस बात को देखकर बहुत ही दुखी और गुस्सा हुए किस प्रकार से मृत्यु मानव को पतन में डाल सकती है। Our God is a God not only proclaiming about such great truths from heaven, but our God is a God who embodied himself like human beings, came into this world and lived among humanity, and he identifies with every struggle that humans go through, including the death. और हमारा परमेश्वर को ऐसा परमेश्वर नहीं जो केवल स्वर्ग में से केवल सत्यों को प्रकट करता रहे, परंतु हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जिसने मानवीय रूप में देह धारण करके वो पृथ्वी पर आए और मानव के हर एक समस्याओं के साथ अपने आप की पहचान उन्होंने करवाई, यहाँ तक कि मृत्यु को भी उन्होंने अनुभव किया। And there is a beautiful hymn in English, and probably it's also translated into Hindi and some other languages. It goes like this: what a friend we have in Jesus, all our sins and griefs to bear, and what a privilege to carry everything to God in prayer. और बहुत ही सुंदर सा अंग्रेजी गीत भी है जो शायद अलग अलग भाषाओं में उसका भाषांतर किया गया है, जो इस प्रकार कहता है कि कितनी अच्छी बात है कि यीशु हमारा मित्र है जो हमारे हर एक पाप हर एक दुख को उठा लेता है, और उससे भी कितनी बड़ी बात है कि हम हमारे हर एक दुख और हर एक हमारी बुरी बातों को परमेश्वर के पास प्रार्थना में लेके जा सकते हैं। Christianity is not just about life after death, but it is living life to the full extent, abundantly during this life without fear or afraid of death. और मसीही जीवन ना ही केवल मृत्यु के बाद के जीवन में, परंतु इस जीवन में भी भरपूरता से मृत्यु से न डरते हुए हमें जीने की बात मसीह सिखाते हैं। We have privilege to carry every problem that we have to God in prayer. और हमें बहुत ही अच्छा अवसर दिया गया है कि हम हर एक बात को हर एक दुख को हम परमेश्वर के साथ प्रार्थना में बांट सकते हैं। Chapter 4 of Hebrews 14 to 16 also proclaims the same truth. For we do not have a high priest who is unable to empathize with our weaknesses, but we have one who has been
tempted in every way, just as we are, yet he did not do sin. Let us then approach God's throne of grace with confidence so that we may receive mercy and find grace to help us in the midst, in the time of this. और हिब्रानियों की पत्री 4 अध्याय 14 से 16 पद में इस प्रकार लिखा गया कि इसीलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं है जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी न हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। इसीलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता है इस हमारे समय की। Jesus and his spirit is ever present with us in our struggles, and he is not away from us during our struggles. और यीशु मसीह और उनका पवित्र आत्मा हमारे साथ हर एक पल हर एक क्षण मौजूद है। हम जब दुख सहन करते हैं तब भी वो हमारे साथ है। There was a person who was walking alongside Jesus on a seashore during an evening. और एक शाम दरिया के किनारे एक व्यक्ति जो था वो यीशु मसीह के साथ चल रहा था। And he was enjoying the conversation. He was speaking to Christ, and they were happily walking. And as they were walking, this man saw the footprints of Jesus Christ and his on the sand as they were walking. और फिर उसके बाद वो बहुत ही खुश थे, एक दूसरे के साथ बातचीत करके वो चल रहे थे। और फिर उस व्यक्ति ने देखा कि उसकी और यीशु मसीह की जो पांव की छाप है वो उस दरिया के किनारे पर देख पा रहा था। As they were still walking, और वो जब चलते ही जा रहे थे, the environment got crazy, and it started to kind of get into the storm mode. और फिर जैसे ही चल रहे थे वैसे आगे जाके उसने ये अनुभव किया कि आंधी एकदम से खड़ी हो गई, पूरा वातावरण पूरा बिगड़ गया। Suddenly this believer got afraid, and he was looking at Jesus Christ, and he's like, Lord, what's happening? और फिर एकदम से वो जो विश्वासी था, जो व्यक्ति था, वो बहुत ही डर गया और फिर वो परमेश्वर से पूछने लगा कि परमेश्वर क्या हो गया। And he didn't hear anything from Christ. और उसने यीशु मसीह के मुख से कुछ भी नहीं सुना। And as he continued to walk, he suddenly looked back, and he wanted to see whether Christ is still with him and he's walking with him. और फिर थोड़ा आगे जाने के बाद उसको एकदम से ऐसा हुआ कि वो पीछे मुड़ के देखे कि क्या यीशु मसीह अब भी उसके साथ है, उसके पीछे चल रहे कि नहीं। And to his surprise, there were only one set of footprints instead of two. और वो चौंक गया क्योंकि अब जो दो लोगों के पांव की छाप वहां पर हो रही थी, उसके जगह पे बस अब एक व्यक्ति की छाप वहां पर थी। And he began to pray, Lord, until now I was happy, we had wonderful fellowship, but now I am in need, I'm afraid what is going to happen, and right when I really need you, I don't see you next to me. What's happening? Where are you? Why did you leave me in this trouble? और फिर वो एकदम से प्रार्थना करने लगा कि परमेश्वर, जब सब कुछ अच्छा था तब मैं आपसे अच्छे से बातचीत कर रहा था, आप मेरे साथ चल रहे थे, आप मेरे पास थे, परंतु अब जब मैं मुश्किल घड़ी में पड़ गया हूँ, अब जब मुझे आपको सबसे ज्यादा जरूरत है, परमेश्वर आप मुझे क्यों छोड़कर चले गए, आप कहाँ हैं, आप मेरे साथ क्यों नहीं है। And Jesus slowly responded and said, और यीशु मसीह ने धीरे से इस प्रकार प्रतिसाद दिया, Dear friend, प्यारे मित्र, you are seeing only one set of footprints. तुम वहां पर केवल एक ही व्यक्ति की पांव की छाप देख रहे हो। And whatever footprints you are seeing, they are of mine. I am holding you in my arms to protect you. और जिन पांवों के छाप आप देख रहे हो, तुम देख रहे हो, वो मेरी है, क्योंकि मैं अपनी बाहों में तुम्हें उठा के लेकर चल रहा हूँ। God is present with us always, and in our pain, He is even more present. परमेश्वर हमारे साथ हर एक समय में मौजूद है, और खास करके हमारे मुश्किल समय में तो अवश्य हमारे साथ है। And we move on to the next point. After problem, we saw the great truth proclaimed by Christ, and we also see our God is not only a God who gave some truths and He is distant from us, but He is ever present with us in our struggles. He hears our prayers. He actually struggles alongside us, so He understands what you are going through. और सबसे पहले हमने देखा मानव की सबसे बड़ी मुसीबत, जो समस्या, जो मृत्यु है, उसके बाद यीशु मसीह जो सत्य का प्रचार करते हैं, और उसके बाद हमने देखा कि यीशु मसीह केवल सत्य का प्रचार नहीं करते, परंतु लोगों के साथ सहभागी बन के, उनके साथ सहानुभूति रख के, वो उनकी परिस्थितियों में उनके साथ और उनके पास रहते हैं।
And the fourth and great important and final truth that we learn is Christ is able to bring back people to life even after death. He is capable. And how do you respond to that great truth is the fourth point. और जो चौथी मुख्य मुख्य सत्य हम सीखने वाले हैं वो ये है कि यीशु मसीह इतना सामर्थ्यवान है कि वो लोगों को मृत्यु में से भी बाहर निकाल के उनको जीवन में ला सकता है। तो इस प्रकार के महान सत्य के साथ आप किस प्रकार अपना प्रतिसाद देंगे? So from chapter 11 that we are discussing, verse 38 till the end of the chapter, we see, especially from 41 to 44 verses, we see Christ has brought back Lazarus to life, even after 4 days of his being in the grave. और फिर यहाँ पे हम देखते हैं 41 से लेकर 44 पद तक हम खास तौर पे देख पाते हैं किस तरह से लाजरस को यीशु मसीह ने जीवन में वापस लाया उसके मरने के 4 दिन बाद भी। We see that in chapter 11:41 verse and following. Let me quickly read it. So they took away the stone. Then Jesus looked up and said, Father, I thank you that you have heard me. I knew that you always hear me, but I said this for the benefit of other people who are standing, that they may believe that you sent me. When he said this, Jesus called in a loud voice, Lazarus, come out. और फिर यहाँ पर इस प्रकार लिखा है 41 से 43 पद तक कि तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भी आसपास खड़े हैं उनके कारण मैंने ये कहा, जिससे वे विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा है। यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर, निकल आ। So this great sign points to the fact that Jesus has authority and power over death. He can bring back a person from death. और ये जो चिन्ह है हमें इस बात पर ये बात सिखाता है कि यीशु मसीह का मृत्यु के ऊपर भी विजय है। यीशु मसीह मृत्यु के ऊपर भी विजयी है और कोई भी व्यक्ति को यीशु मसीह जो है वो मृत्यु से निकाल कर जीवन में ला सकते हैं। He just wants to prove that he has authority over death and there is life beyond the grave. और वो ये इस बात को साबित करना चाहते हैं कि वे मृत्यु में से जीवन को किसी भी व्यक्ति को ला सकते हैं और उस कब्र से परे भी एक जीवन। And Jesus did this before his resurrection, but through his own death and resurrection, Jesus again proved his sovereignty over death and the certainty of the truth of resurrection. और फिर यीशु मसीह के खुद के मृत्यु और पुनरुत्थान से पहले उन्होंने किया, परंतु उनके मृत्यु और पुनरुत्थान के बाद भी उन्होंने ये घोषणा की, ये साबित किया कि यीशु मसीह मृत्यु पर विजयी है और जीवन मृत्यु के बाद भी एक अनंत जीवन है जो हमारे लिए रखा। Lazarus was just brought back to life. He was not brought back to life as a resurrected person, but he was just brought back to life. He died again. लाजरस को तो केवल सिर्फ जीवन में वापस लाया गया था, कोई अनंतकालिक जीवन में वो प्रवेश नहीं किया था क्योंकि वो उसके बाद भी वो मर गया। But Jesus offers eternal life through resurrection. So whoever resurrects the believers, they will live with Christ forever. So that's slightly different from Lazarus coming back to life. और लाजरस जो जीवन में वापस आया उससे अलग बात यह है कि यीशु मसीह जब अनंत काल हमें देते हैं, अनंतकालिक जीवन में पुनरुत्थान हमें देते हैं, तब हम अनंत काल के लिए यीशु मसीह के साथ उनके जीवन में सहभागी बनते हैं। And Corinthians chapter 15 verse 20 says, but in fact Christ has been raised from the dead, the first fruits of those who have fallen asleep. That means like the way Christ has come back to life and resurrected, the same way believers shall be there, not like Lazarus but like Christ. और पहला कोरिन्थियों 15 और 20 में लिखा है, क्योंकि ये सच बात है कि यीशु मसीह को मृत्यु में से जीवन में लाया गया, जो हर एक मरे हुए व्यक्ति के लिए एक प्रथम फल है। इसका मतलब यह है यीशु मसीह सबसे पहले मृत्यु में से पुनरुत्थान में आकर अनंत काल में गए, उसी प्रकार हर एक विश्वासी या फिर हर एक व्यक्ति भी इस प्रकार मृत्यु से अनंत काल में प्रवेश करेंगे। The sign provoked belief in people who experience this. We see that in chapter 11 verse 45 we read, therefore many Jews who had come to visit Mary and has seen what Jesus did believed in him. और इस चिन्ह की वजह से अनेक लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास भी किया, क्योंकि 45वें पद में हम इस प्रकार लिखा हुआ पाते हैं कि इसीलिए जो यहूदी लोग जो मरियम को मिलने के लिए आए थे और यीशु मसीह को भी, उन लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया। So Christianity stands either stands or falls on this great truth, that is resurrection.
और ये मसीहत जो है, मसीह धर्म जो है, या तो वो खड़ा रहता है या फिर वो गिरता है इस पुनरुत्थान के बड़े सत्य के ऊपर। And from the scriptures, we clearly see that Jesus has power over death. और हम वचनों में से साफ साफ सीखते हैं कि यीशु मसीह का मृत्यु के ऊपर सामर्थ्य है। And he himself has died and resurrected. उन्होंने खुद स्वयं ये अनुभव किया कि वे जीवित मृत्यु पाया, उन्होंने वे पुनरुत्थित हुए। And he offers the same hope to all of us today. और वो उसी प्रकार की आशा आज हम प्रत्येक व्यक्ति को देते हैं। How are you today? And where is your heart? And whether is it afraid of what's happening around you, or is it taking strength, and do you believe in what Christ has proclaimed? और आप कैसे हैं अभी? क्या आपका हृदय किस परिस्थिति में है? क्या आप डर गए हैं? क्या आप सहमे हुए हैं जिस भी परिस्थितियों में आप आजू बाजू में जी रहे हैं? या फिर क्या परमेश्वर ने आपको एक नई आशा में आपको नवाजा? How are you responding to the crisis around you? Are you panic like anybody else in this world? Are you responding in faith that Christ, apart from Christ, nothing can happen to you? और किस प्रकार का प्रतिसाद आप देते हैं जब आप इस दुनिया के आजू बाजू की विपत्तियों से घिरे हुए, आपत्तियों से घिरे हुए हैं? क्या आप दूसरे लोगों के समान डर गए हैं, या फिर क्या आप यीशु मसीह में एक जो महान आशा है उसमें आप निडर होकर जीते? We'll read one verse from 2 Corinthians chapter 4, verse 8 through 11. हम दूसरा कोरिन्थियों चौथा अध्याय फिर 8 से लेके 11 पद को हम पढ़ेंगे। We are afflicted in every way, but not crushed, perplexed, but not driven to despair, persecuted, but not forsaken, struck down, but not destroyed, always carrying in the body the death of Jesus, so that the life of Jesus may be manifested in our bodies. This great truth should resound in our body and on our minds. The truth is, we have so many problems that we are going through, like the world, but we are not destroyed, we are not crushed, we are not forsaken, we are still alive. We are still alive so that we may take this truth forward in our body. और दूसरा कोरिन्थियों 4 8 से 11 इस प्रकार से है कि हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो है पर निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते। हम यीशु की मृत्यु को अपने देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन हमारे देह में प्रकट हो, क्योंकि हम जीते जी सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं कि यीशु का जीवन हमारे मरणहार शरीर में प्रकट हो। इसका मतलब यह है कि हम जो सामान्य लोगों के समान मुसीबतों में से, समस्याओं में से गुजरते हैं, परंतु फिर भी एक विश्वासी होने के नाते हम संकट में नहीं पड़ते, हम निराश नहीं होते, हम त्यागे नहीं जाते, हम नष्ट नहीं होते, क्योंकि यीशु मसीह में जो महान आशा हमें मिली है वो हम विश्वासियों के नाते हम अपने जीवन में लिए फिरते हैं। I started with what happened during the early church times. Do you see why they were able to respond to such crisis in a different way? मैंने शुरुआत की कलीसिया में जो जिस प्रकार का सामना उन्होंने किया था उस पर से किया था। अब आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से वो एक अलग प्रकार का प्रतिसाद लोगों को दे पाए। And we also saw Martin Luther responding differently to his daughter's death. फिर उसके बाद हमने मार्टिन लूथर का भी प्रतिसाद देखा, जो उसकी जब बेटी मर गई बीमारी के कारण, उस समय उसने किस प्रकार प्रतिसाद दिया। Every believer can have such hope and live with such great faith. हर एक विश्वासी के पास एक ऐसी आशा हो सकती है और इतने महान विश्वास के साथ वे जी पाएंगे। The greatest problem in this world is death. सबसे बड़ी इस दुनिया में समस्या है वो मृत्यु है। The greatest solution to that problem is resurrection in Christ. सबसे बड़ा उपाय जो इस पूरी बड़ी समस्या का है वो ये है कि यीशु मसीह में पुनरुत्थान। In the times like these, where death is imminent and we are afraid of what is going to happen and we are in panic, we should remember that Jesus is compassionate and he is ever present with us. और इस मुश्किल परिस्थितियों में जहां पे मृत्यु निश्चित लग रही है, बहुत ही विकट समय में से हम गुजर रहे हैं, हमें याद रखने की जरूरत है कि यीशु मसीह जो है वो सहानुभूति अपने लोगों के लिए कराता है और वो हमेशा हमारे साथ है। Jesus brought back Lazarus to life and he himself has resurrected from death. यीशु मसीह ने लाजरस को भी जीवन में वापस लाया और उसके साथ साथ वे खुद भी मृत्यु में से पुनरुत्थान में प्रवेश किया है उन्होंने अनंत काल। How is this truth impacting you today? How are you responding to such great truth today?
और इस विश्वास, इस ये जो महान सत्य है, इसको आप किस प्रकार अपने जीवन में ले रहे हैं, किस प्रकार आप इसके साथ बर्ताव कर रहे हैं, किस तरह से आप इसका प्रतिसाद दे रहे हैं? Can you today say, Lord, whatever happens in my life is not happening without your permission? क्या आप ये कह पाएंगे कि परमेश्वर मेरे जीवन में आज जो कुछ भी हो रहा है वो आपकी दी गई परवानगी के अनुसार नहीं हो, परवानगी Lord, के बिना नहीं हो रहा है? Lord, help me not to panic during this situation, but help me to remember your word and live a life of faith. परमेश्वर मुझे मदद कीजिए कि मैं अब इस पूरी मुश्किल परिस्थिति में डर ना जाऊं, परंतु विश्वास के साथ आपके वचन को याद रखकर अपने विश्वास में दृढ़ता में आगे बढ़ता रहूं। Help me to have the hope of resurrection in front of me and also spread that great news to others, carry that great truth to others around me who are in panic. और इस समय में आप मुझे मदद कीजिए, सहायता कीजिए कि ये जो पुनरुत्थान का जो महान सत्य है वो अपने जीवन में मैं खुद उतार पाऊं, और उसके साथ साथ ये महान सत्य का प्रचार मैं आजू बाजू के मुश्किल से घिरे हुए लोगों को भी मैं बता पाऊं, ताकि वे भी आपके राज्य में प्रवेश कर पाए। So the great truth that we learn from this sermon today is only God has solution to the God-sized problems. इसीलिए जो महान सत्य हमने जो इस पूरे अध्ययन में से सीखा वो ये है कि परमेश्वर जितनी बड़ी समस्या का उपाय केवल परमेश्वर के पास है। If you believe that, you also take that word to others outside. यदि आप इस बात पर विश्वास करते हैं तो इस शब्द को आप बाहर लोगों के पास भी लेके जाइए। Let's pray and commit to the Lord. आइए हम प्रार्थना करें। Lord, we thank you for this wonderful time to contemplate on the greatest truths that have been proclaimed in the scriptures. Thank you for bringing back Lazarus to life. In that, you have shown that the world's greatest question and the world's greatest problem is death. And you provided greatest solution to that problem through resurrection. And we want to thank you for that, Lord. Lord, we also thank you that you are not distant from us during our problems. As we go through this pandemic, Lord, you are with us. You are walking with us. In fact, you are actually holding us in your arms. We thank you for such great comfort that your word brings. Lord, help us to digest these truths in our heart. Help us to remember the resurrection of Christ. Help us to remember that Christ has power over death, and then live a life of faith. Lord, help us not only to remember these great truths in our lives during the midst of difficulty, but also help us to spread this to people around us, Lord. They are looking for hope. They are looking for meaning. They are looking for answers. Lord, you have given us the answers. So help us to also give these answers, give this hope to the people around us, Lord. Bless all the people who are listening to this word. Bless them. Help them to live a life of faith and courage and joy during this pandemic. Help all of us to live a life, a joyful life, in spite of the fact that we are all going through difficult times. Thank you for your promise. Thank you for your word this morning. Thank you for what you do in our lives. Help us to seal that great truth in our hearts and live according to that. Bless the ministry of Dauntless Pulpit, that they may continue to expand their work and reach many people, thousands and lakhs of people in our country, Lord. Bless the team. Bless all of us who have been part of this. In Christ's most precious name we pray. Now, may the love of the Father, grace of our Lord Jesus Christ, sweet and matchless communion of the Holy Spirit may rest and abide with all of us for now and forevermore. Amen. 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 Thank you. God bless you. May we all live by the truth that we have just heard. God bless you.